आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। मुझे वहां से पढ़िए जहाँ से खामोश हूँ मैं। हंसना हंसाना तो हुनर है मेरा। So I say that everyone almost knows me, but still nobody knows me. You know, मुझे एल्विस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि Hi, I'm Hunar Hali and you're watching me on Crazy for TV. क्रेजी फॉर टीवी के वुमेन्स डे स्पेशल में आज मेरे साथ वो खूबसूरत मोहतरमा है जिसकी मेहनत और हुनर के मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। वेलकमिंग हुनर हाली। हेलो हेलो, वेलकम टू क्रेजी फॉर टीवी। Thank you so much. It's lovely to be here with you. After so long we're meeting, after so many years. How are you? I know that's what I was about to say, that I know you with this shallow say, Correct. and you know, the warmth and everything is still there, and you know, that is what I'm fortunate about being in this industry. That क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक इंसान पैसा 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 देखता रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसे आज है कल नहीं है, बट क्या कमाया है ये कमाया है। करेक्ट, जो आपको एक्चुअली कमाने चाहिए। Absolutely. And I'm so glad that I've earned it. Absolutely. All of you guys have always been there with me, always supported me, and today on Women's Day we're just empowering each other by sitting with each other. एब्सोल्युटली। ओके, तो जैसे आपने कहा कि वुमेंस डे, तो खास मौके के लिए आज हमारी मुलाकात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू यू। Hey, happy Women's Day to you too. ओके, लेकिन हुनर ऐसा नहीं हो गया, मतलब एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड अस कि वुमेंस डे अब बस कहने के लिए ही रह गया है। There's lot of things that are happening around us in the world, बहुत सी चीज़ें you know, तो अब बस लगता है कि सिर्फ कहने के लिए ही रह गया है कि हाँ बस। See, I think लोगों की मेंटालिटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है या किसी की फीलिंग्स की वजह से आप अपने आप को वैलिडेट करेंगे और उस वजह से आप कुछ करेंगे। लाइक एज अ वाइफ, जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड आपको सपोजिंगली उस हिसाब से फील नहीं कराते, तो आप you know, you would want to live your life and not celebrate yourself because you're not validated by him. In short, मेरे कहने का ये मतलब है कि why live your life validating yourself कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। You know, self-respect, self-importance and self-love is very, very important. You know, if you do that, then automatically everyone else will do that for you and with you and stand by your side for it. Correct. I think that answers your question. Correct. Okay, so And आज that's what we do on Women's Day. Absolutely. Precisely. तो आज के दिन हाउ डू हुनर ट्रीट्स हरसेल्फ, या मयंक कुछ स्पेशल करते हैं आपके लिए या आप खुद के लिए कुछ स्पेशल करते हो, कैसे मनाते हो ये दिन आज का? तो आई तो बेसिकली मैं, जैसे मैंने कहा, व्हाट आई सेड दैट इज व्हाट आई फॉलो। लाइक मैं अपनी फेवरेट हूँ जैसे करीना कपूर भी कहती है, एंड आई नो वो ये क्यों कहती है, यू नो, बिकॉज वो हमेशा उन्होंने अगर ये कहा कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और उसको फॉलो भी किया, वो इसीलिए है बिकॉज दैट मेक्स हर हैप्पी एंड वाइवेशियस एंड जॉली, which is what that line precisely means, and because of that she will always be happy, and every woman who feels like that will always be happy. So if he's in town, then we do something together, and if he's not in town, then I do it with my girls. Correct. Walk out or do something like this, what I'm doing today with you. You know, this is also making me feel good and happy to share my insights और जो मैं सोचती हूँ with the world, with everyone, with you, and maybe learn something from you. And you never know, हमारी जब चीज़ बाहर आएगी तो उस पर जो comments आएंगे तो उसमें लोगों से हम क्या सीखेंगे। Correct. You know, एक वो भी तो बहुत ही अहम हिस्सा है इस जीवन का, इस दुनिया का जहाँ पे हम जी रहे हैं, जहाँ पे there's a lot of hatred that we are living in. I think that's exactly precisely what you were talking about. Correct. You know, in your initial question, majorly it was the trolls and the hatred, Yes. and you know, all the pulling down factor and how you handle it as a woman, despite of celebrating yourself and all of that, and then you question yourself कि celebrate करें भी कि नहीं करें, absolutely, and everything that is going on. Correct? Yes. ओके, तो एनी कोई पर्टिकुलर मोमेंट या कोई ऐसा खास मेमोरी अगर मैं पूछूँ विथ मयंक कि हाँ कुछ ऐसा खास उन्होंने किया जो आपको अभी याद हो? यार देखो, यूजुअली तो वही होता है दैट कि
letting a woman be and Correct. you know, kind of making her follow her dreams and still be able to follow her dreams. Like me, wanting to pursue my career and my life even after marriage, I'm still doing that. Correct. You know, today if I have to sign something or if I have to work on something, I know that my husband will support me in that. And that's the biggest thing. You know, mera passion, acting. I love acting. I love myself as an actor. I'll tell you something very funny actually. हाँ, ये तो है. He's supporting me in my dreams as an actor is one integral part. What I, जो आपने बोला husband ने कुछ किया तो इससे बड़ी क्या कोई होगा? चीज़ तो इससे आगे तो Absolutely. हर चीज़ छोटी है. You know, like I'll tell you something very funny. Like, apart from acting, like कभी you know, जैसे मैंने क्रिकेट ज्वाइन कर लिया. जैसे मैंने वो धीरे धीरे करते करते ऑफ कोर्स आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हो. गिटार सीखना ज्वाइन कर लिया या सिंगिंग ज्वाइन कर लिया. अब कुछ कुछ चीज़ों में ऑफ कोर्स मैंने कुछ अच्छा हासिल किया, पर जैसे गिटार सीखने ज्वाइन किया तो वो तो बिल्कुल उसमें तो मैं बिल्कुल ही फेल हो गई. बट उसमें तो मुझे उसमें भी सपोर्ट किया ना at the end of the How day. sweet. So even in my silliest things, what I mean to say, even in my silliest things, my funny things, and you know, he supports me, so it's good. It's Green nice. flag. Mayank is saying green flag. So I think that's good. That's a good thing. Live and let live is my philosophy that I follow, and I'm very happy that वो भी इसमें मेरा साथ देते हैं. करेक्ट. हुनर, आप इतने सालों से हो इस इंडस्ट्री में, यू हैव डन सम अमेजिंग शोज एंड अमेजिंग रोल्स. कैसे बैलेंस किया है अपना वर्क लाइफ, होम, मैरिड लाइफ? बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, आई एम श्योर. बहुत सी स्ट्रगल्स भी होते हैं, जहन में बहुत सी बातें भी चलती है, डाउन पीरियड भी आता है. तो कैसे हुनर ने कैसे अब तक इस इंडस्ट्री में मैनेज किया है अपना वर्क एंड होम? क्या है ना कि हम एज एन एक्टर ना बहुत रूप लेके घूमते हैं. जैसे कि गुलजार साहब ने इतने फेमसली कहा है कि मुझे वहाँ से पढ़िए जहाँ से खामोश हूँ मैं, हंसना हंसाना तो हुनर है मेरा. वाह वाह. तो यही है, मतलब इसी के ज़रिए मैंने अपनी ज़िंदगी अभी तक जी है और आज भी जीती हूँ और आगे भी जीती हूँ. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मैं चुप ही रहती हूँ, नहीं बोलती हूँ. बोल के उसमें से कुछ जब तक कुछ यू नो समथिंग इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ इट, मेक्स नो सेंस टू यू नो टॉक अबाउट और गेट इनटू दैट टॉपिक. काम को लेके ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज बिन अ स्ट्रगल. बीइंग एन एक्टर is a struggle. You know, मैं इसीलिए सबको यही कहती हूँ कि all you people, anybody who wants to become an actor, who thinks of becoming an actor, you should also have a simultaneously एक passion एक और होना चाहिए आप लोगों के पास जिस पे आप फोकस कर सको apart from acting. क्योंकि उतार चढ़ाव इतने होते हैं ना हमारी लाइफ्स में as an actor, you know, स्पेशली अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं होता है तो आपके पास वो एक अलग कुछ होना चाहिए जिस पे आप हमेशा यू नो बैंक ऑन कर सको, जो आपको सोलास या पीस दे सके. एंड पेशेंस अगर आप में है देन यू शुड थिंक ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, यू नो, बिकॉज पेशेंस इज की इन एन एक्टर. तो हाँ, स्ट्रगल्स और वो लाइफ, मेरी ज़िंदगी जो भी जैसे मैंने वो तो है ही. आई नो एवरीवन एंड एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री नोज मी सारा. ऑलमोस्ट मतलब मैं 17 साल की थी जब मैं काम करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है मैंने ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है एंड काम किया है. सो आई से दैट एवरीवन ऑलमोस्ट नोज मी बट स्टिल नोबडी नोज मी. दैट पार्ट यू नो, जो लोग अक्सर इतने खुल के नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ क्योंकि हाँ ये सच है, दिस इज ट्रू. क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने इनहिबिशंस में जी ली, इन्हें अपने आप को इनहिबिट करके कि ये नहीं वो नहीं, यू नो, ऐसे वैसे. आई थिंक अब मैं वो चीज़ें सही कर रही हूँ बाय नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ एंड ओपनिंग अप माई सेल्फ एंड बीइंग मोर फ्लेक्सिबल टू परस्यू एंड डू व्हाटएवर कम्स माई वे एज लॉन्ग एज इट चैलेंजेस मी. क्योंकि मुझे किसी ने कहा था ये कि तुम तो हमेशा हुनर, तुम क्या बात करती हो, तुम तो हमेशा किरदारों के पीछे छुप के दुनिया के सामने आई हो, तो तुम्हें जो भी जानता है वो तुम्हारे किरदारों के जरिए जानता है.
तुम खुल के एज यू कहाँ कभी आई हो सामने, जो तुम डंके की चोट पे ये कह सको दैट लोग मुझे पसंद करते हैं, वो तुम तब कह सकती हो जब तुमको लोगों ने एज यू देखा हो, तुमको हमेशा एज किरदार देखा है। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग दैट किसी ने मुझे बोला। समथिंग चेंज्ड इनसाइड यू जब मुझे ये बात किसी ने बोली तो मुझे लगा कि ये तो इट वाज अ बिग पिंच कि एंड अ क्वेश्चन व्हिच या तो मैं उससे फियरफुल हो जाती कि अरे यार हाँ एक्चुअली मैं खुल के एज होनर तो आई नहीं, तो पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे और ट्रोल्स एंड नेगेटिविटी वो सब तो इतना होता ही है या तो मैं उसको एज अ चैलेंज लेती। तो ये एक कश्मकश थी जिसमें मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम गोना टेक इट एज अ चैलेंज एंड नाउ इन व्हाटएवर पॉसिबल वे आई कैन कम आउट विद माय ओपिनियंस, विद माय थॉट्स, चाहे दुनिया जो मर्जी बोलती है बोले। I started coming out by meeting you guys, by doing podcasts, by interacting, by socializing. Reality shows? I did. Yeah. ये मैंने reality में भी कदम रखा, वो एल्विस के शो के जरिए जियो हॉटस्टार पे गेम शो जो है। तो और एल्विस ने बकायदा अच्छी खासी लेग पुलिंग करी मेरी, ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक ही इज वेरी क्यूट। मुझे एल्विस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बेबाक है, जो होता है बोल देता है। क्या होता है ना, जो लोग ऐसे होते हैं ना अक्सर लोग उन्हें थोड़ा गलत समझ लेते हैं या माइंड कर लेते हैं, मिसअंडरस्टूड रहते हैं हमेशा ऐसे लोग। बट आई थिंक दैट्स द मोस्ट एंडियरिंग क्वालिटी अबाउट हिम। वो लेग पुलिंग करता है या कुछ भी बोल देता है या जो भी है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना, डंके की चोट पे बोलता है जो उसको महसूस होता है, जो भी होता है, व्हाटएवर। सो I find that very cute, the way he is, and बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा था। OTT में तो मैंने खैर उन्हें सपोर्ट किया ही था जब वो कर रहे थे, और वो जीते भी हैं। एंड पहली बार जब मैं उनसे इन पर्सन भी मिली तो आई वॉज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। जो मैंने सोचा था उनके बारे में कि फन लविंग और एंटरटेनिंग, सही सपोर्ट किया मतलब। तो मुझे लगा कि ये तो ठीक था मेरा सपोर्ट, मिल के भी मतलब अच्छा है, और वैसे भी जो देखा रियलिटी में वो ही वाज लाइक गुड। क्योंकि कभी कभी ये भी तो होता है ना कि रियलिटी में आप देखते हो बिग बॉस में आप किसी को जानते हो, फिर आप देखते हो यार ये बिल्कुल ही अलग है, रियलिटी में तो ये तो कुछ अलग ही रूप दिखा रहे हैं। तो उनका मुझे सेम ही लगा, जैसे उधर मैंने उनको देखा और जैसे रियल में जब मैं उनसे मिली और जब बात किया मुझे तो सेम ही लगा। तो मुझे तो बहुत एंडियरिंग और बहुत क्यूट लगे वो। ओके, तो आपने अपने लिए दरवाज़ा खोल लिया है रियलिटी शोज के, अब भरमार है, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, व्हाट नॉट, मैंने सब खोल लिया दरवाजा। सिंगिंग में खोल दिया है दरवाजा, अपना क्रिकेट में भी खोल दिया है, अब सब करती हूँ। नो बट आई डू एवरीथिंग। स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं बिग बॉस जैसा कंट्रोवर्शियल शो, वुड यू एवर वांट टू? हमेशा पीछे हटती थी, वही मैंने कहा जब मेरे पे किसी ने ये क्वेश्चन लगाया ना, ये जो मैंने बात आपको बताई, तो आई एम लाइक यार अब तो मैं सब करूंगी। पहले कभी आए हैं ऑफर्स बिग बॉस के? हाँ आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली आफ्टर छल शर्मा जो मैंने किया था, आई वाज द लीड ऑफ दैट शो ऑन कलर्स। तो बट वही मैंने कहा ना कि वो फियर और इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से नहीं कभी हमेशा किरदारों के पीछे छिपे रहना ही सही समझा। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब किसी ने एक्चुअली ये पॉइंट उठाया कि भाई मैं क्यों कर रही थी ये, मैं व्हाई वाज आई डूइंग दिस, व्हाई why am I being so afraid of myself? जबकि मैं इंडस्ट्री में मीडिया फ्रेटर्निटी से जिनसे भी मिलती हूँ, जिनके साथ इंटरव्यूज देती हूँ, बैठ के बातें करती हूँ, सबसे सब लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ खुश होते हैं, they like me as a person, तो फिर क्यों मुझे किस बात से, why am I scared? Why should I be scared? Is this a message that as an actor I want to give out to my audience, to my दर्शक? नहीं, जब मैं as a woman empowered फील करने में विश्वास रखती हूँ। पटियाला बेब्स जो मैंने शो किया था सोनी पे, where I played the other woman in that show. अदर वुमन आज तक हमेशा बैड लाइट में दिखाई गई है, लेकिन उस शो का यही था कि अदर वुमन जो है उसको अच्छी लाइट में दिखा कि अदर वुमन हो के भी वो कैसे सपोर्ट किया। परिधि who played the main wife, तो अदर वुमन हो के भी वो कैसे खड़ी हुई वाइफ के लिए, सपोर्ट किया। तो टू वुमन एम्पावरिंग ईच अदर, क्योंकि ये भी बहुत देखने को मिलता है। और मेरी लाइफ में तो
मतलब शुरू में काफ़ी ऐसे मेरे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे you know where I've seen in my personal life where I've been pulled down by women and I feel that कि एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था। हाँ मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धोखे खाए, मतलब I've had major setbacks and major heartbreaks literally। वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन कभी कभार निकलती है। हैव यू एवर फेस्ड ऐसा कुछ इस इंडस्ट्री में बाय योर कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस? पर्सनल लाइफ में और इंडस्ट्री में भी मैंने अपने शुरू के फेजेस में, एज आई सेड, मैं 17 साल की थी जब मैंने काम करना शुरू किया, तो पर्सनल लाइफ में तो डेफिनेटली, बट प्रोफेशनली भी मुझे बहुत ऐसे फेजेस मिले जहाँ पे मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किए हैं कि मेरे सामने हंस के ऑल ऑफ दैट, जिनको मैंने दोस्त समझा, उन्होंने ही कैसे मेरे पीठ पे खंजर मारे, और इट्स जस्ट इट मेड मी रियलाइज दैट बस हो गया, अभी मेरे को अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सर्कल रखना है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, छोटा सर्कल चाहिए, जो लोग who make me feel awesome, make me feel great, बस वही रखने हैं। बट ये सब के बावजूद भी मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले अपनी ज़िंदगी में, women who have empowered me, made me strong, made me achieve my dreams। रागिनी खन्ना, when I worked on ससुराल गेंदा फूल with her, she was the one in fact who questioned me। उसने बोला, हुनर तू 3 लीड्स वाले शोज क्यों कर रही है? यू आर अ पर्सन हु कैन बी अ सोलो लीड एंड रन अ शो, तू क्यों कर रही है? व्हाई? हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। कुछ अगर ऐसे फीमेल्स मिले जिन्होंने पुल डाउन किया, तो कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने उठाया, जिन्होंने कुछ सिखाया, जैसे आरती सिंह गृहस्थी में हमने साथ में काम किया था, तो मैं ना हमेशा लिस्ट लेती रहती थी, रोना नहीं आता था मुझे कि कैसे करना है, और मैं देखती थी उसके साथ इमोशनल सीन होता था, मैं देखती थी यार कि ये क्या कर रही है ये लड़की, फाट इसके आंसू गिरते हैं यार, हाउ डज शी डू इट मैन, आई यूज्ड टू बी लाइक, ऐसे देख रही होती थी। शी टॉट मी हाउ टू क्राई, आरती, शी टॉट मी हाउ टू क्राई इन अ सीन विदाउट टेकिंग अ ग्लिसरीन। तो आज की डेट में अगर मेरा कोई इमोशनल सीन होता है, मुझे नहीं जरूरत है ग्लिसरीन की, उसको फील करके मैं हो जाता है, मैं रो लेती हूँ, बट अब क्रेडिट तो दूंगी ना कि कहाँ से आया है, किसने सीखा। ज्यादा खुशी होती है तो बांटो, बांटने से हमेशा खुशियाँ बढ़ती है, और ज्यादा दुख हो जाता है तो उसे भी बांटो, बांटने से दुख कम ही होता है ना। एंड नफरत जो है वो रख के क्या करना है, क्योंकि कहते हैं कि हाँ नफरत है, इनबिल्ट है, इस दुनिया में है, बहुत नफरत है, ट्रोल्स है, किसको अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है उसको बोलो, उसको कुछ करो, क्योंकि अपने आप में जो नहीं है वो दूसरे में देख लिया तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ से। लेकिन सच बात ये है कि वो किसी ने प्यार से झप्पी नहीं दी उन लोगों को, क्या प्यार से कभी बात नहीं करी, या प्यार नहीं दिखाया, तो उस वजह से वो अनफुलफिलमेंट जो होती है ना, वो किसी को थोड़ा सा नेगेटिव बना देती है। अदरवाइज अगर आप देखो ना, तो ये पूरी जो दुनिया है ना, ये सब प्यार से ही चलती है, प्यार बांटो। ओके, ऑन दैट नोट मैं ये पूछना चाहूँगी हुनर कि आप इतने सालों से हो, एक इनसाइडर हो इन द इंडस्ट्री, राइट? इस वक्त टेलीविज़न पर, इस वक्त या पहले भी, हर कहानी एक औरत के ही इर्द गिर्द घूमी है, करेक्ट? लेकिन उसके बावजूद बहुत से केसेस हमने, नथिंग स्पेसिफिक, बट बहुत से केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, पैसे नहीं क्लियर किए जाते एक्ट्रेसेस के, कभी कभार कुछ मसलों से की वजह से रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। बीइंग एन इनसाइडर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? क्या रिएक्ट करना चाहोगे? अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है जहाँ आपको किसी भी तरीके से कोई नाइंसाफ़ी महसूस हो, तो मैं ऐसी हूँ इसलिए मैं ये चीज़ कहूँगी, क्योंकि मैं अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं कभी भी किसी और पे उंगली उठा के ये नहीं देखूंगी कि उसने ये किया, मैं ये देखूंगी कि मैंने क्या गलत किया, What wrong did I do? Somewhere I must have gone wrong। ऐसा तो नहीं हो सकता, हम लोग संत नहीं हैं कि हमने सब, क्योंकि देखो अपनी कहानी में सब हीरो होते हैं, ठीक है, तो भले ही 90% आपने सब कुछ अच्छा किया हो, आप उस 90% को मत देखो, आप उस 10% को देखो कि 10% क्या गलत किया मैं। ऑफ कोर्स
you know, to take out your money from someone, you will have to follow certain protocols and certain things. But then you decide and feel that okay, next time I will not work with these people, है ना? And दूसरी बात क्या बोली आपने? एक तो पैसों का और दूसरा रातों रात रिप्लेस कर दिया replace जाता है या फॉर it can डिफरेंट be various रीजंस reasons. या तो अब इसमें हाँ ये भी हो जाता है. अब इसमें ट्रैक्स चेंज हो जाते हैं. क्या अब इसमें आप अपने आप को क्वेश्चन मत करो, वो गलत हो जाता है. आप इसको ना मुकद्दर पे और उस पे छोड़ो. बुरा लगा तो उसके बारे में बात करो. मैंने भी की बात करना गलत नहीं है, लेकिन फिर उस चीज को पकड़ के बैठे रहो और उसी की चर्चा करते रहो और यू नो नई अपॉर्चुनिटीज और नई चीजें इनवाइट मत करो. उसको ब्लॉक कर दो. उसको ब्लॉक कर दोगे ना फिर आप अपनी नेगेटिविटी से. वो थोड़ी करना है. साइड बाय साइड फिर कोशिश करो कि कैसे आप यू नो कुछ और अच्छा इनवाइटिंग प्रोजेक्ट जो है अपने हाथ में लेकर आ सकते हो. तो बोलो लोगों को कि देखो मेरी डेट्स फ्री है और ऐसे ऐसे मेरा यू नो ख़त्म हो गया, तो मुझे अभी यू नो नया काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए. आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, आप अच्छी स्टोरीज बनाते हो, अच्छी कहानियाँ बनाते हो, अच्छा लिखते हो, तो आप देखो अगर मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ और हम लोग साथ में जुड़ सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैं नहीं शर्माती हूँ, तो बोलती हूँ. मैं तो सामने से बोलती हूँ कि भाई बताओ मुझे काम चाहिए, तो अच्छा काम चाहिए, मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ. अभी इतने साल से काम किया है, लोगों को जानती हूँ, ठीक है जो भी है. मैं तो बोलती हूँ. मुझे नहीं होता है वो ईगो नहीं होता है कि यार मैं क्यों जाऊँ किसी के पास बोलने के लिए कि आई नीड वर्क. अरे बुलशिट मैन, ये क्या है? ये कौन सी अणक हुई? आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक्टर हो, ये क्या हुई? ये क्या ईगो हुई? बिल्कुल. मतलब मैं दर्शकों तक कैसे पहुंचूंगी, कैसे अपना दिखाऊंगी कला? मैं तो बोलती हूँ, आज की डेट में भी बोलती हूँ, किसी को मैं बोलती हूँ. इतना साल काम करने के बावजूद या आई डू इट. कितनी बार 2-3 बार एक ही चीज के लुक टेस्ट देती हूँ, एक ही चीज के 4 बार मॉक शूट्स देती हूँ, जस्ट टू कन्विंस पीपल. समटाइम्स यू हैव टू डू इट कि यस आई कैन डू इट. बट कहने का मेरा जो मतलब है आपके सवाल का, वो इन शॉर्ट में ये है, सेल्फ डाउट में अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो. सेल्फ डाउट में नहीं रहना. अपने आप पे जो आपका कॉन्फिडेंस और विश्वास है उसे बरकरार रखो. जहाँ पे आपको लगता है आप कहीं गलत गए हो, तो उस गलती को अपनाओ, एक्सेप्ट करो और उस पर देखो कैसे काम कर सकते हो. एब्सोल्युटली. ओके, एक और चीज़ आज मैंने डिस्कवर की है कि मैम गायक बन गई हैं. तो टू ऑल द वुमेन आउट देयर, क्या स्पेशल सॉन्ग उनके लिए गाना चाहोगे? जो मेरा मंत्र है लाइफ का, जो मैं फॉलो करती हूँ, इस वजह से वो गाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में भी लिव इन द मोमेंट फॉलो करती हूँ. वो गाना था ना, काफ़ी पुराना गाना है. आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही वाओ. ओके, ऑन दैट नोट, बहुत से इस वक्त लड़कियां, औरतें देख रही होंगे, यू नो, बहुत से मसलों पर रिलेट कर पाए होंगे. क्या मैसेज देना चाहोगे आज के दिन पर? कि भूल चूक माफ़. और अगर मैंने जो भी कहा इसमें कुछ भी आपको लगा हो जो आपकी ज़िंदगी में आप उसे एक पॉजिटिव और अच्छे एम्पावरिंग वे में यूज़ कर सकते हैं, देन आई वुड रियली फील हैप्पी अबाउट enlightening someone and making somebody happy, because that's what you live life for. That's about it, and happy Women's Day to all of you.